Udana is relevant to the Mooladhara chakra. And then in this, the whole aspect of which we are talking about or understanding that the process of development during the pregnancy stages. So that Mugdha Udana is the Naivedyam which is to be prepared by using that moong dal, pepper, lavan and jaggery. And so that this causes, as it is relevant to the Mooladhara chakra, this brings in the strengthening of the skin and bones. And this happens during the 5th month of the pregnancy. And then this Naivedya, after being offered to Mother Goddess, has to be consumed by the pregnant woman. So that leads to the proper development of the bones and the good skin development in the fetal development, which brings in these kind of changes, which on doing this kind nama chanting, as well as a kind of preparation of Naivedya offered to goddess, brings in the kind of complete development in these particular areas of the fetus. And Agnya Chakrabja Nilaya Shukla Varna Shadanana. So as for the Agnya Chakra, which is the chakra which is in between the eyebrows, as we know, the goddess who is the controller or the ruler of it is the Siddha Mata, who is also known as the Hakini Devi. And then the comparison for this Agna Chakra here is given to that kind of the lotus flower. And in this Shukla Varna, it means that which is white in color. Here this particular description of which goes as the one which is white in color. And then as we know that above the Agna Chakra is the Sahasrara, where this is the complete combination of the Shiva Shakti Aikya Rupini, which is the ultimate, or the Sahasrar, where one can reach through the Shat Chakra awakening, wherein the Kundalini moves to the complete Urdhadwara and causes the combination or that uh, significance of the effect of Shiva Shakti Aikya Rupini, where one can go through it. And then this consists of also that this is relevantly significant for the different tattvas as the Akasha tattva, and also that the 5 indriyas, where it is known as the Vishuddhi here, is the one of all the different 5 chakras, which are the Vishuddhi, Anahata, Manipuraka, Swadhisthana and Mooladhara, so which are going in combination with the Panchagnanendriyas and Pancha Karmendriyas. The Vishuddhi here refers to the Akasha Tattva, where it also symbolizes the 5 Indriyas. And one second. Indriyas, where it is referred to as being 5 phased. And then that is what is the whole importance of this particular Agnya Chakrabja Nilaya Shukla Varna Shadanana. Shadanana meaning that this is the 6th chakra. In the Shat chakras, this is the 6th chakra which has got 6 phases. And the chakra is the Agnya chakra, which is relevant to that which causes or makes a person look inwards as Antakarana Shuddhi, makes a person completely turn inwards once if the person is uh, blessed with the activation of this particular Agna chakra, meaning that he would be able to look within himself inwards, where which leads to the search of himself in Antakarana Shuddhi, bringing in that kind of a so, knowing of himself within inside. Majja Samstha Hamsavati Mukhya Shakti Samanvita. So here majja is that kind of a gel which is present in between the bones, where this brings to the kind of development on chanting this name during this nama in during the pregnancy stages. And not only that, in the 5th month, like where it leads to the development of the bones, but also it brings in the proper formation of the skeletal system, the whole framework of the structure of the development in the fetal stage as well, as where it is for, it makes the formation of the gel as well. And then Hamsavati is that Hamsavati refers to the Akshara as Ha and Ksha, where these are the 2 petals in the Agna Chakra, which are known as the Hamsavati, which is nothing but Soham, and also Kshamavati. So that these are the learnings of this particular uh, Hamsavati as the term. Majja Samstha Hamsavati Mukhya Shakti Samanvita.
And then as the next nama as Haridrana Karasika Hakini Rupadharini. So Haridrana here means that the kind of Naivedyam which is offered as a yellow rice, which has to be given in combination with ghee, pepper, and which on offering the Naivedya in the 6th month, the woman should be consuming this Naivedya, where it leads to the complete growth and good development of the fetus. So this is what is the learning in Haridrana Karasika Hakini Rupadharini. Madam. हाकिनी रूपधारिणी हाकिनी रूपधारिणी वो आज्ञा चक्र के लिए हाकिनी देवता है। वो हाकिनी देवता इसलिए हम योगा में भी हाकिनी मुद्रा करने तो आज्ञा चक्र का वो शुद्धि हो जाते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। हाकिनी मुद्रा हाकिनी मुद्रा कैसे करते हैं? हाकिनी मुद्रा ऐसे करते हैं। मैं एक बार मैं सिखाते हैं, कल ऐसा प्रैक्टिस करवाते हैं एक बार हाकिनी मुद्रा। अच्छा, तो हाकिनी मुद्रा से ऐसे क्या-क्या बेनिफिट है ना? हाकिनी मुद्रा करते तो आज्ञा चक्र एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि उसका अधिष्ठान देवता हाकिनी है। वो हाकिनी, इसलिए हाकिनी मुद्रा करने से क्या होता है, वो आज्ञा चक्र एक्टिवेट होके नीचे चक्र होते हैं ना, पूरा पांच चक्र वो भी शुद्धि हो जाते हैं वो मुद्रा करने से, क्योंकि आज्ञा चक्र मतलब वो सभी మేడం को ఇది హాకిని ముద్ర అంటే ఏంటి, ఎలా ఉంటుంది? ఇట్లా ఇలా చేస్తారు. హాకిని ముద్ర చెప్పిస్తాను, అది దాంతో సోహం ప్రాక్టీస్ చేస్తే అన్ని చక్రాలు శుద్ధి అవుతాయి, ప్లస్ మన లోపల అన్నిటికీ కూడా ఇది పనిచేస్తుంది. అది నేను మీకు చెప్పలేదా? చెప్పలేదు అనుకుంటాను, అది చేయిస్తాను. అది ఓకే, సోహంలో చేయొచ్చు, అది మళ్ళీ లాస్ట్ లో చూద్దాం, లేకపోతే ఇవాళ నేను చివరి ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత वो पूरा ये क्लास होने के बाद लास्ट में मैं ये सिखाते हैं, वो करने से क्या होते हैं, पूरा नीचे वाला चक्र भी बैलेंस्ड होते हैं, वो भी शुद्धि हो जाते हैं आज्ञा चक्र के साथ साथ, और संकल्प शक्ति भी बढ़ते हैं हमारा ये तो करने से। मैम यदि एक ये भी किए, यही किए, तो क्या और करने की जरूरत नहीं है? हाँ, मतलब वो ऐसा पहले थोड़ा सा ये भी शुद्धि होना है, उसके बाद यही प्रैक्टिस कर सकते हैं, आखिरी ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये मैम, ये जो अपना लेफ्ट पे राइट एंड लेफ्ट हैंड को जो रखते हैं ऊपर नीचे, तो वो और इसमें क्या डिफरेंस हुआ मैम? ये करने से राइट लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड रख के हम करते तो क्या होता है, पूरा सर्किल जैसा आते हैं, हम क्या करते हैं, वो बाहर नहीं जाते हैं, वो एनर्जी पूरा हमारे शरीर पे ही होते हैं, और शरीर पे होके सभी नाड़ियों को शुद्धि करते हैं, और चक्रास में जाते हैं, मतलब रोटेट हो जाते हैं, सर्किल जैसा वो रोटेट हो जाते हैं, वो बाहर नहीं जाते हैं एनर्जी से। इसलिए ऐसा करते तो ऐसा होते हैं, हम ऐसा करते तो क्या होता है, रिसीव करते हैं और चित्त और आत्मा को दोनों को ये मिलाते हैं, ऐसा करते थे, इसलिए इसको बोलते हैं चिन्ह मुद्रा। चिन्ह मुद्रा मतलब चित्त मुद्रा, मन को एक मन को आत्मा से मिलाते हैं, इसलिए चिन्ह मुद्रा, चित्त मुद्रा, चित प्लस मुद्रा चिन्ह मुद्रा हो गया है, वो संधि बोलते हैं ना, ऐसा चिन्ह मुद्रा हो गई। उसमें चित मतलब मन, मन को वो एकाग्र करते हैं, मन को मिलाते हैं, तब कैसा करते हैं, ये रिसीव विश्व शक्ति को ऐसा रिसीव करके
मन से मिलाते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। तो ये भी ऐसा भी कर सकते हैं। तब क्या होते हैं, इसको ज्ञान मुद्रा भी बोलते हैं। ज्ञान मुद्रा मतलब वो ज्ञान देते हैं, विश्व ज्ञान को रिसीव करके हमारा मन से मिलाते हैं, चित्त से मिलाते हैं, इसलिए इसको चिन्ह मुद्रा बोलते हैं और ज्ञान मुद्रा भी बोलते हैं। और ऐसा करते तो क्या होता है, पूरा हम क्या कर रहे हैं वो बाहर नहीं जाते हैं, पूरा रोटेट करके अंदर ही अंदर वो शुद्धि करवाते हैं ऐसा करने से। और ये जो अभी आपने कहा मैम, वो हम्म। मुद्रा, ढाकनी मुद्रा, हाकिनी हाकिनी मुद्रा, मुद्रा, वो हाँ हाकिनी हाकिनी, मुद्रा से वो आज्ञा चक्र से वो रिलेटेड है ना, वो आज्ञा चक्र को शुद्धि करके और नीचे चक्र को भी शुद्धि करवाते हैं वो, और अच्छा संकल्प शक्ति भी बढ़ते हैं। वो अच्छा। संकल्प शक्ति मतलब वो कुछ लोग होते हैं मन स्थिर नहीं होते हैं, वो भी हाकिनी मुद्रा करते तो मन स्थिर हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। और हम्म। तो इससे भी बॉडी का पूरा ये होता है शुद्धिकरण, हाकिम, हम्म। हाकिनी मुद्रा से भी। हाकिनी मुद्रा से पूरा षट चक्र शुद्धि हो जाते हैं ना, इसके वजह से हेल्थ भी अच्छे होते हैं, मन का शक्ति ज्यादा बढ़ते हैं इसमें। अच्छा, मन का शक्ति ज्यादा मन का शक्ति मतलब मन का शक्ति ज्यादा बढ़ते तो स्थिरत्व आते हैं, और हाँ हाँ। संकल्प शक्ति और आज्ञा शक्ति मतलब कमांडिंग पावर बढ़ते हैं, ऐसा होते हैं। वो सिखाते हैं हाँ हाँ हाँ। वो आज्ञा चक्र का। थैंक यू सो मच मैम। हाँ, इसमें आप देख लीजिए, इसमें भी हाँ हमसवती मतलब वो हम स्वरूप में होते हैं, वही सो हमें श्वास से ही हम करना पड़ेगा, श्वास को पकड़ के श्वास को बाहर छोड़ने पे अंदर लेने पे ये करना है। तब वो सोहम हंस गायत्री हो जाते हैं। इसमें देवता है हमसवती क्षमावती है ना, उसका नैवेद्य हरिद्रान्न को नैवेद्य करना है। और सहस्र दल पद्मस्था सर्ववर्णोपशोभित, सहस्र दल पद्मस्थ, इधर हम समझते सहस्र मतलब 1000 में, इधर और एक अर्थ है संस्कृत में, सहस्र मतलब अनंत, मतलब वो उसका अंत नहीं है। उधर वो फ्लावर्स पेटल्स भी 1000 से भी ज्यादा होते हैं, इतना होते हैं वो, मतलब वो सहस्रार में इतना पेटल्स वो होते हैं अनंत, मतलब ज्यादा पेटल्स होते हैं, हमको इसको काउंट भी नहीं कर पाते हैं। मतलब हमारा अंदर का ये ये शक्ति इतना होते हैं, इसलिए वो सहस्रार से कब सहस्रार पे वो लोटस विकसित होते हैं, हमको समस्त ज्ञान मिलते हैं। हम बाहर से हम नहीं सीखते भी वो ज्ञान मिलते हैं, ऐसा होते हैं। इसको बोलते हैं ब्राह्मी स्थिति भी बोलते हैं। ये प्रेग्नेंट लेडी में वो 7th मंथ पे वो सहस्रार तक जाते हैं, तब वो पूरा वो संपूर्ण डेवलपमेंट इसमें बेबी को आते हैं। और उसके बाद होते हैं 8th मंथ और 9th मंथ पे उसका प्राण शक्ति अच्छे से स्थिर होते हैं, तब वो बाहर आ जाते हैं, ये हो जाते हैं। 7th मंथ तक इम्पोर्टेंट है, 7th मंथ तक पूर्ण डेवलपमेंट होके 8th और 9th मंथ में प्राण स्थिर होके वो गर्भस्थ शिशु बाहर आ जाते हैं। आप देख लीजिए, माँ का श्री चक्र में नवावरण होते हैं, वो नवग्रह होते हैं, ऐसा पूरा नव मतलब वो परिपूर्णत्व के लिए वो सांकेतिक रूप है। इसलिए हमारा अंदर का वो गर्भस्थ शिशु भी 9 मंथ्स पूरा होने के बाद वो बाहर आ जाते हैं। कभी कभी जल्दी भी आते हैं,
मगर परिपूर्ण तत्व और प्राण स्थिर होने के लिए पूरा 9 मंथ्स वो यूट्रस में रहना है। और सर्ववर्णोपशोभित, सर्ववर्ण मतलब उसका एक एक चक्र के लिए एक एक वर्ण होते हैं ना। आज्ञा चक्र के लिए पीत वर्ण और ये ऐसा विशुद्धि के लिए सफेद वर्ण और मूलाधार के लिए रक्त वर्ण ऐसा होते हैं ना। ऐसा 5 वर्ण होते हैं और पूरा षटचक्र के लिए 6 वर्ण होते हैं। ये सभी मिला के सहस्रार पे होते हैं, इसलिए सर्ववर्णोपशोभित, सभी रंग सभी वर्ण मिला के होते हैं। अच्छा इसलिए मैम, स्वादिष्ठान का कौन सा कलर होता है? स्वादिष्ठान का कलर स्वादिष्टान में मैं देखना है, मैं भूल गए थे। ब्लू है? स्वादिष्ट ब्लू ब्लू है क्या मैम? हाँ, ब्लू कलर होते हैं क्योंकि वो जल तत्व है ना, इसलिए ब्लू कलर होते हैं। और इसका मणिपूरक का कौन सा कलर होगा मैम? मणिपूरक में मैं एक बार ये चेक करके मैं एक बार मैं बताते हैं। वो ठीक है। आज्ञा चक्र के लिए सफेद वर्ण है और मूलाधार के लिए रक्त वर्ण है। और पीत, और वो पीत वर्ण मणिपुर के लिए अच्छा पीत होगा। वर्ण मणिपुरक के लिए, हाँ ठीक पीत है, हाँ वर्ण हाँ हाँ, मणिपूरक के लिए, ठीक। मणिपुर के लिए पीत वर्ण होते हैं। ऐसा कलर्स होते हैं, ये सभी कलर्स मिला के सहस्रार पे होते हैं। सहस्रार का एक कलर ऐसा है अलग है ऐसा नहीं होते, सभी कलर्स मिला के होते हैं, इसलिए सर्ववर्णोपशोभिता। शोभिता मतलब वो प्रकाशवंत है, सर्ववर्ण मिला के वो प्रकाशवंत है। और इसमें क्या होता है, सहस्रार के पास उसके पीछे वो ब्रह्मरंध्र होते हैं। वो ब्रह्मरंध्र क्या करते हैं, वो पूरा विश्व चैतन्य को वो लेके वो सहस्रार तक प्रसरित करते हैं, इसलिए वो प्रसरण करते हैं। वो क्या होता है, वो सर्ववर्णोपशोभित मतलब उसका रंग वो सभी रंग से वो शोभित है। और उधर होते हैं अक्षर भी, अकार से आहा तक और का से टा, फिर डा से लेके पकार तक, और स्वादिष्टान में होते हैं बकार से लकार तक, मूलाधार पे वा से सा तक, आज्ञा पे शा तक, पूरा 50 अक्षर सभी चक्र में विभाजित करके ये वो हुआ अरे ये है। क्या 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 होते हैं मैम, मूलाधार में कौन कौन सा? ये एक बार बोलते हैं। अ, विशुद्धि में आ से लेके आहा तक, अच्छा ऊपर में से हम नीचे तक आ रहे हैं। स्वर का आकार पूरे स्वर विशुद्धि में ना, अ से अह तक। विशुद्धि में आ से लेकर आहा तक होते हैं। अनाहत में का से टा तक, ठा ठा सेकंड ठा तक होते हैं। अच्छा क वो से ठ। अनाहत में हाँ, मणिपुर पे होते हैं डकार से आकार तक होते हैं। अच्छा एक मिनट मैम, ये क से लेकर के ठ तक ही ना, ड ढ नहीं होगा? डाढ़ा नहीं, का से अच्छा ठ, लेके ठा ठा तक होते हैं अनाहत में। और अनाहत, मणिपुर पे होते हैं डा से लेके फकार तक, फा फकार फा फा ड फा क ड, अच्छा फा तक होते हैं। फ तक और ना, ओनली स्वादिष्टान में हाँ प फ ओनली ना मैम? हाँ फा फा हाँ, वो उधर तक होते हैं। स्वादिष्टान में होते हैं बकार से लेके लकार तक, बा से ब, लेके ला तक होते हैं। अच्छा ब से और लेके ल, अच्छा हाँ, अच्छा। मूलाधार में होते हैं वा सा सा सा। मूलाधार में ब, वो होगा ना मैम, व। हाँ, मूलाधार में वा सा सा सा, ये अच्छा 4 अच्छा। हाँ नहीं होता है, हाँ नहीं, हाँ को छोड़ करके ये लेटर्स व
व श स स्वादिष्टान में ला तक होते हैं ना, ला के, इसलिए ला के नेक्स्ट अक्षर से शुरू होते हैं, वहां से आशा सा और मूलाधार पे। अच्छा, मतलब ह को छोड़ करके ये होते हैं ना मैम, व श स। सा तक। हाँ अच्छा, स तक, हाँ ठीक है। आज्ञा चक्र में हाट शा, 2 अक्षर। आज्ञा चक्र में हाट शा। हर अक्षर, अच्छा। वो पूरा मिला के 50 अक्षर होते हैं। अच्छा। वो अच्छा, एक एक ये सभी अक्षर सहस्रार पे होते हैं, आ से लेके क्षा तक। वो 5 चक्र में विभाजित करके होते हैं, मगर ये सभी अक्षर फिर वो पूरे सहस्रार में होते हैं। वो एक एक अक्षर को एक एक वर्ण होते हैं, ये सभी मिला के वो सर्व वर्णोपशोभिता हो गया। अच्छा, सारे लेटर्स फिर सहस्रार में होते हैं, मतलब सब सब सारे वर्ण। वो उसको भी बोलते हैं वर्णमाला बोलते हैं ना, वो सभी वर्ण वो उधर होके सर्व वर्णोपशोभिता। उसका भी कलर्स उसको वर्ण बोलते हैं। वो वर्ण मिला के, वो सभी वर्ण मिला के वो सहस्रार पे, आ से लेके क्षा तक सहस्रार पे वो मिला के होते हैं, वो सर्व वर्णोपशोभिता। अच्छा अच्छा, अच्छा, ये 2 लेटर मैम, अक्षर त्र, ये जो और 2 मिक्स लेटर हैं, अक्षत्र, वो नहीं होते, वो उधर तक वो काउंट नहीं है, अक्षा तक काउंट है। आ से लेके क्षा तक 50 लेटर थे। लेटर्स काउंट। अच्छा अच्छा। इसमें होते हैं एक एक अक्षर को एक एक कलर होते हैं, अगर ये क्या क्या कलर है मालूम भी नहीं है, मुझको मालूम नहीं है। होते हैं इसलिए। अच्छा, कलर के लिए मैं कल एक बार करती हूँ मैम डिस्कस, मतलब आप किस। आप समझ सकते हैं, वो हाँ उसमें होते हैं 50 अक्षर, मगर सर्व वर्णोपशोभिता हम देखते हैं। मूलाधार पे वा सा शा सा 4 लेटर्स, मतलब उधर उसका फ्लावर पे 4 पेटल्स होते हैं। और उसके स्वादिष्टान में कौन सा लेटर्स होते हैं? स्वादिष्टान में बकार से लेके लकार तक, बा, वा, मा, या, रा, ला, 6 पेटल्स होते हैं। अराला मतलब 6 लेटर्स, 6 पेटल्स होते हैं। और मणिपुर पे डकार से पकार तक, मतलब डा, धा, 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 था, दा, धा, ना, पा, फा, 10 लेटर्स होते हैं, इसलिए 10 पेटल्स होते हैं। एक एक पेटल को एक एक लेटर है, ऐसा होते हैं ना एक एक चक्र में। और अनाहत में होते हैं 12 लेटर्स होते हैं, 12 पेटल्स होते हैं। 12 पेटल्स के लिए 12 लेटर्स होते हैं। मगर सहस्रार में पूरा 50 लेटर्स होते हैं, मगर सहस्रार पे अनंत बोलते हैं ना, ये कैसे साध्य होते हैं? एक बार सोच लीजिए। ये 50 लेटर्स होते हैं, पूरा वर्णमाला सहस्रार पे होते हैं, वो वर्णमाला में 50 लेटर्स होते हैं। मगर सहस्रार मतलब वो सहस्रार में वो पेटल्स होते हैं ज्यादा, मतलब आनंद है वो पेटल्स। मगर हम 5 चक्र में हम वो फ्लावर पे देखते हैं, मूलाधार पे 4, स्वादिष्टान में 6, ऐसा मणिपुर पे 10, ऐसा अनाहत में 12, ऐसा हम देख रहे हैं ना। पूरा 50, टोटल 50 हो जाते हैं। आज्ञा चक्र में 2 ही होते हैं, वो फ्लावर में 2 पेटल्स होते हैं, हाथ 2 लेटर से। मगर सहस्रार में इतने ज्यादा पेटल्स होते हैं, वो हम अनकाउंटेबल है, मगर उसमें 50 लेटर्स होते हैं। हम देखे हैं ये पेटल्स में वो इतना लेटर्स होते हैं, उतने पेटल्स होते हैं वो चक्र में। मगर सहस्रार में 50 लेटर्स हो गया, मगर पेटल्स ज्यादा हो गया, मतलब अनकाउंटेबल है। तब कैसे हम समझ सकते हैं? So a letter से कैसे, how the words are formed. So in the same way, like building of one letter in combination.
So in the same way, like on opening or activation at the Sahasra, that leads to the complete gaining of the knowledge in the whole of the universe. Maybe हाँ that is what करेक्ट is, हाँ, करेक्ट वो होते हैं पूरा नॉलेज वही अक्षर से होते हैं वो इतना सकल शास्त्र होते हैं वेद में भी इतना अक्षर इतना ज्ञान होते हैं और उपनिषद है सकल शास्त्रों में वो वो अक्षर से ही बनते हैं ना वो अक्षर से इतना अनंत ज्ञान है यही सहस्रार का संकेत है मतलब वो सहस्रार कब कुंडलिनी सहस्रार जाते हैं जाके उधर शिव से मिलते हैं तब क्या होते हैं समस्त ज्ञान हमको आते हैं समस्त विज्ञान कितना विज्ञान है वो समस्त उसका अंत भी नहीं है ऐसा ही हमारा वो सहस्रार में इतना अनंत पेटल्स मतलब अनकाउंटेबल होते हैं उसमें होते हैं वो लेटर्स भी वो लेटर्स से ही वो ज्ञान होता है वो हम बता सकते हैं मगर लेटर्स से ही पूरा समस्त ज्ञान आते हैं इसलिए वो लेटर्स वो सहस्रार पे होते तो इतना शक्ति इतना विज्ञान आते हैं इसलिए उधर 50 लेटर्स होते तो भी ये समस्त मतलब वो इतना पेटल्स होते हैं उसमें इतना ज्ञान होते हैं समस्त ज्ञान इसमें होते हैं अभी समझ में आ गया पूरा मूल विद्या उधर से ही आते हैं सर्वायुध धरा सर्वायुध धरा मतलब वो इतना आयुध है इतने देवी देवता है उसके पास इतना आयुध है वो आयुध पूरा सहस्रार पे देवता के पास होते हैं और शुक्ल संस्थिता मतलब शुक्ला मतलब इसमें होते हैं शुक्ला वो जीवोत्पत्ति के लिए वो होते हैं ये शुक्ला वो शुक्ला जेंट्स में होते हैं स्पर्म का रूप में और लेडीज में होते हैं वो वोवम का रूप में होते हैं ये बीज रूप में होते हैं ये यही बीज को शुक्ला संस्थिता बोलते हैं और सहस्रा इसलिए हम इतना जप और ध्यान हम करते हैं हमारा अंदर का वो शुक्ल का शुद्धि होते हैं वो बीज मतलब वो बीज वही ओजस के रूप में होते हैं वो धातु वो सप्त धातु में भी शुक्ला एक धातु है मतलब वो स्त्री और पुरुष में अलग अलग रूप में वो होते हैं उसको बोल सकते हैं ओजस भी बोल सकते हैं इसलिए वो शादी होने के बाद इतना पवित्र शादी के पहले भी पवित्र होना है और शादी के बाद भी पवित्र से साधना करते तो अच्छे संतान पैदा होते हैं वो शुक्ल वो भी सप्तधातु में वो सप्तधातु में शुक्ल का वो शुद्धि के लिए ये सहस्राराम वो सहस्रदल पद्मस्थ सर्ववर्णोपशोभित सर्वायुधरा शुक्ल संसिता ये श्लोक पढ़ते पढ़ते क्या होता है वो अंदर का वो शुक्ल शुद्धि होके अच्छे संतान होते हैं और हम साधना करते तो हमारा अंदर ओजस बढ़ते हैं सर्वतोमुखी मतलब हम बोले ना एक एक मूलाधार को एक मुख होते हैं स्वादिष्टान में दो मुख द्विमुख होते हैं और मणिपुर पे त्रिमुख मतलब 3 मुख होते हैं और अनाहत में 4 होते हैं विशुद्धि में 5 मुख होते हैं आज्ञा चक्र में 6 मुख होते हैं सब हम बोलेंगे इसमें होते हैं एक एक इतना अनंत पेटल्स मतलब ज्यादा पेटल्स होते हैं उसमें एक एक पेटल का एक एक मुख ऐसा करके इतना ज्यादा मुख मतलब सहस्रमुखी बोलते हैं सहस्रमुखी मतलब वो सर्वतोमुखी
सहस्रमुखी ऐसा बोल सकते हैं, मतलब ज्यादा मुख होते हैं, वो भी अनकाउंटेबल है। और वो 7th मंथ में होते हैं, सर्वे इंद्रिय का पुष्टि आते हैं। और सर्वोदना प्रीत चित्त, ओदना मतलब आहार है, सर्व औदना प्रीत चित्त मतलब सर्व औदना मतलब सर्व आहार माँ को प्रीति है। वो सर्व आहार मतलब वो 6 चक्रों के लिए आहार बताए ना, वो सभी आहार माँ को नैवेद्य करके वो निवेदन करके खा सकते हैं। तब वो गर्भस्थ शिशु को पुष्टि आ जाते हैं। अन्ना देव भवन्ति भूतानि मतलब वो अन्न से ही शक्ति आते हैं, अन्न से ही पंचभूत का भी वो तृप्ति होते हैं। अन्नम न निंद्यात, अन्नम न परिचक्षित मतलब अन्न को, आहार को अन्नम न निंद्यात, निंदा नहीं करना है, ये ऐसा है ऐसा, ये अच्छा नहीं है ऐसा करके, वो अन्न को, आहार को निंदा नहीं करना है। आहार को हम प्रसाद मान के वो खाना है, मगर वो निंदा नहीं करना है आहार को। सर्वोदना प्रीतसिक्ता, और एक अर्थ है सभी सर्व विषय पे समस्थिति समबुद्धि होना, वो भी एक अर्थ आते हैं। वही ब्राह्मी स्थिति पे लेके जाते हैं, मगर एक क्यों हम सभी पे समस्थिति मतलब सुख में, दुख में, कष्ट में, नष्ट में कैसे होते तो भी समस्थिति होना है, इक्वल भाव होना है, तब क्या होता है, ये ब्राह्मी स्थिति है। मतलब नेगेटिव होते तो भी यही आनंद में रहना है, और पॉजिटिव में होते तो भी यही ऐसा ही होना है, ऐसा मानसिक स्थिति डेवलप होना है। वही तात्विक, उसको बोलते हैं वो तात्विक स्थिति में है, ब्रह्म स्थिति में है, ऐसा बोल सकते हैं। उसका माँ है हाँ, सहस्रार में होते हैं याकिन्यम्बा स्वरूपिणी, वो याकिन्यम्बा स्वरूपिणी वो सहस्रार सप्तम स्थान है, सप्तम स्थान में होते हैं याकिन्यम्बा स्वरूपिणी। आ, वो माँ को सभी का आहार मतलब आहार हम 5 6 चक्र में कौन सा नैवेद्य होते हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए, वो सभी आहार उसमें नैवेद्य कर सकते हैं। और एक बात है, इसमें होते हैं याकिन्यम्बा स्वरूपिणी, अम, और सभी चक्र का देवी देवता भी वो सहस्रार पे स्थित होते हैं, उसका अक्षर वर्णमाला होते हैं, वो सभी भी सहस्रार में होते हैं। और इसमें हम जाप करते तो विशुद्धि चक्र में वज्रेश्वरी होते हैं ना, वो उसका मंत्र अ, मंत्र को कैसे करते हैं, वो बीजाक्षर से लेके करते हैं, मतलब वज्रेश्वर्ये ओम वज्रेश्वर्ये स्वाहा, डाकिनी होते तो डम डाकिन्ये स्वाहा, रम राकिन्ये स्वाहा, राकिन्यम्बा के लिए ऐसा वज्रेश्वरी, वो ऐसा स्वाहा स्वाहा करके मंत्र करते हैं, मगर वो स्वाहा का मंत्र स्त्री नहीं करना है, वो केवल पुरुष ही करते हैं, स्त्रियों को वो स्वाहा नहीं देते हैं, वो ऐसा स्वाहा नहीं करना है, स्वाहा का
वो स्वाहा यंत्र मतलब होम हम करते हैं ना, वो होमम में भी स्वाहा स्वाहा से ही करते हैं। हमारा शरीर को वो योगिनी देवता हमारा शरीर को रक्षणा करते हैं। वो योगिनी देवताओं का उसको रक्षणा ललिता देवी ने करते हैं। और एक है हम हमारा माँ होते हैं ना, माँ से ही हम माँ का गर्भ से हम बाहर आ गए, इसलिए वो हमारा माँ बन गया है। मगर हमारा हमको असली माँ है वो ललिता माँ है। वो ललिता माँ क्या कहते हैं, हमारा अंदर होते हैं, वो हमको शरीर देते हैं, इंद्रिय देते हैं, प्राण शक्ति और जीवन शक्ति देते हैं। वो सभी का नॉलेज वही देते हैं। हमारा वो होते हैं ना, हमारा माँ क्या कहते हैं, बचपन से हमको सिखाते हैं। ऐसे ही ललिता माँ ने हमको सभी शिक्षा अंदर से देते हैं, उसको पकड़ते तो ही अंदर समस्त ज्ञान हमको ये देते हैं। माँ हमको शिक्षा करके वो शिक्षणा करके हमको ये सभी सिखाते हैं। हम कुछ कर्म करते तो भी वो शिक्षा करते हैं। शिक्षा मतलब शिक्षणा है, हमको शिक्षणा देते हैं, उससे हम लेसन सीखना है। वो कोई भी कुछ कष्ट आते हैं, मगर वो कष्ट कैसे मिटाना, वो सभी हमारा अंदर से ही हम सोचते तो मालूम पड़ते हैं। तब वो मिटाने के लिए हमको माँ ने अंदर का ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान से हम वो कष्ट मिटाने के लिए हम सोच के वो कष्ट मिटाते हैं, वो ज्ञान से ही। ऐसा माँ हमको कष्ट दे के अंदर से ज्ञान देते हैं, ऐसा शिक्षणा देते हैं। इसलिए वो श्री माता हो गए। मतलब वो श्री मतलब वो सौंदर्य और संपदा ये होते हैं ना, हमको वो संपदा पाने के लिए ज्ञान देते हैं वो माँ अंदर से ही। यही याकिन्यम्बा स्वरूपिणी। ओम। और इसमें उसके बाद आते हैं स्वाहा। अभी स्वाहा और स्वधा, मतिर्मेधा और मतिर्मेधा अनुत्तमा तक आप देख लीजिए, इतना नाम है। वो स्वाहा, वो स्वाहा देवता होते हैं, उसको स्वकार होते हैं। हम मंत्र किसी भी मंत्र बीजाक्षर से करते हैं, उसमें आते हैं स्वाहा आते हैं वो मंत्र पे। और हम अंगन्यास करन्यास करने टाइम में भी वो स्वाहाकार आते हैं। होम करते हैं ना हम, यज्ञ यागा दिखते हैं, तब भी उसमें स्वाहा आते हैं। स्वाहा मतलब वो समर्पण करना, ऐसा नाम, ऐसा मीनिंग आते हैं। सभी देवी देवताओं को स्वाहा रूप में माँ इसको आहार देते हैं। इसलिए हम होम होम और हवन करने के टाइम में स्वाहा बोले तो वो स्वाहा ही, हम किस देवता का हवन कर रहे हैं उसको आहार मिलते हैं, वो स्वाहा से ही मिलते हैं। स्वाहा वो हम वो होम कुंड में क्या डालते हैं स्वाहा करके, घी डालते हैं और कुछ होम द्रव्य डालते हैं ना। हाँ जी। हाँ, स्वाहा करके वो डालते हैं हम। घी डालते, कुछ होम द्रव्य और नवग्रह नवधान्य और होम द्रव्य वो सभी उसमें स्वाहा करके डालते हैं। तब वो स्वाहा से ही वो देवता अब उसका आहार जैसे उसको स्वीकार करते हैं। इसको बोलते हैं हाविष्य भी बोलते हैं ना इसको।
वही स्वाहा स्वधा। वही अग्नि का पत्नी स्वाहा देवी है। वो स्वाहा माँ का ही रूप है, वो माँ का ही शक्ति उसके पास, वो स्वाहा के रूप में अग्नि के पास होते हैं। वो अग्नि के द्वारा ही स्वाहा देवी सभी देवी देवताओं को आहार देते हैं। और हम अग्निहोत्र लगाते हैं तब स्वाहा दक्षिणे पार्श्वे देवीं वामे स्वधां तदा, ऐसा कहते तो ऐसा प्रार्थना करना है। क्या होते हैं, अग्नि के पास वो राइट साइड में स्वाहा देवी देवी होते हैं, लेफ्ट साइड में स्वधा होते हैं। मतलब वो राइट साइड वो पूरा पितृदेवता के लिए होते हैं, और लेफ्ट साइड होते हैं स्वधा, वो देवताओं के लिए होते हैं। वही शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो टाइप में होते हैं। ऐसा ही उत्तरायण और दक्षिणायन दो दो आते हैं। तो इधर उत्तरायण है देवताओं के लिए, दक्षिणायन पितृ देवताओं के लिए होते हैं। इसलिए दक्षिणायन में होते हैं वो बोलते हैं पितृपक्ष बोलते हैं ना, वो पितृपक्ष दक्षिणायन में ही आते हैं। वो पितृ कार्य के लिए स्वधा देवी है, देव कार्य के लिए स्वाहा देवी होते हैं। वही विशुद्धि चक्र देवता का वो मंत्र विशेष है, वो वज्रेश्वरी, वो ही स्वाहा के रूप में होते हैं, वो वज्रेश्वरी। स्वाहाम स्वधाम सुधाम, ऐसा लक्ष्मी अष्टोत्तर में भी आते हैं। वाचम वाचम पद्मालयाम पद्माम सुचिम स्वाहाम स्वधाम, ऐसा स्वधाम सुधाम, ऐसा लक्ष्मी अष्टोत्तर पे आते हैं। इधर तक है। एक बार प्रतिभा जी कह सकते हैं, और उसके बारे में और ज्यादा है ये कल बताते हैं। आप इतना तक समझ में आ गए, आप बता सकते हैं। सोनाली जी। सहस्र सहस्रदल पद्मस्था सर्ववर्ण पशुविता। सहस्र मतलब अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। उस सहस्रार्ध का अनंत पेटल्स है। अनंत पेटल मतलब वो अनकाउंटेबल है, वो पेटल्स को हम काउंट नहीं कर सकते। सेवेंथ, यहाँ बेबी की 7th मंथ का डेवलप होती है। बेबी की संपूर्ण बच्चे पूरा सारे उनके ऑर्गन हो जाते हैं इस सहस्त्र दल में जब आते हैं। और सर्वो सुविधा, एक एक चक्र का एक एक रंग होते हैं, सर्वोपर्णव सुविधा, और इनमें सारे रंग एक साथ होते हैं। जितने चक्रों के सारे कलर इसमें होते हैं, उनके सहस्त्र पैटल होते हैं, तो इनके भी उनके जो जो संख्या है इसमें वो 50 सारे संख्या इसमें होते हैं। और इसके पैटल्स अनकाउंटेबल है, वो संख्या भी यहाँ आके बहुत सारे ये क्या बोले सहस्रार्ध पास है, ब्रह्मरंध्र सहस्रार्ध के पास है।
पूरा विश्व चैतन्य लेके वो सहस्रार्ध प्रसारण करते हैं ब्रह्मांड। वहाँ सारा ज्ञान होता है सहस्रार्ध में। जब हमारे मतलब ये होता है चैतन्य होता है, जब हमें ब्रह्म स्थिति होती है तब हमें सारे ज्ञान मिल जाते हैं। और जैसे सच्चा अब सर्वायुध सरा शुक्ल संस्थित सर्वतोमुखी, सब चक्रों के माथा 5-7 ऐसे हैं, इनके बहुत सारे इसके माथा है। सर्वोत्तम ये अनकाउंटेबल हेड है इसके। याकिन्यम्बा माता यहाँ रहते हैं। सर्वोदन प्रतिचित्त सर्वोदन प्रीत चित्या, सब आहार यहाँ से प्रिय है। सर्वोदन प्रीत चित्त। सर्वोदन मतलब ओदना मतलब आहार है, सर्व आहार। वो नीचे से लेके षट चक्र का कौन सा प्रसाद निवेदन करते हैं, वो सभी आहार सहस्रार पे निवेदन कर सकते हैं। मतलब वो सर्व आहार उसको प्रीत है, मतलब सभी आहार उसको प्रीत। माँ को प्रसाद में दे सकते हैं, फिर वो प्रेग्नेंट लेडी को हम सर्व कर सकते हैं, हम खुद भी खा सकते हैं, तो हमें माँ की सर्वबुद्धि मिलते हैं। ब्राह्मी स्थिति वो स्थिति हमें आती है। तात्विक स्थिति ब्रह्म स्थिति जो बोलते हैं, सारे अवस्था में हम खुद को स्थिर रख सकते हैं। और यहाँ के यकीन नंबर है याकिन्यम्ब सहस्र चक्र का अधिदेवता है। अधिदेवता है। स्वाहा मंत्र, स्वाहा होम की मंत्र है। ये स्वाहा स्वाधा मति मेधा श्रुति स्मृति। ललिता माँ असल माँ है हमारे। बाकी जो जन्म देने वाली माँ है उसको हम ऐसे ही तो माँ बोलते हैं, लेकिन हमारे सारे बुद्धि सब कुछ ललिता माँ ही हमें देते हैं। हम पूरा ज्ञान देते हैं माँ, तभी वो श्री माता है। स्वाहा देवता यहाँ की स्वाहा एक देवता है। देवी देवता को सारे को स्वाहा के रूप में हम खाना देते हैं, खाने के लिए जो घी जग में डालते हैं, स्वाहा बोल के तो डालते हैं ना, कि सब पात्र फूल फल सब देते हैं। स्वाहा देवता की आहार है। अग्नि उनकी पत्नी है। स्वाहा देवी माँ की रूप है। स्वाहा देवी स्वाहा स्वधा, स्वाहा राइट में रहते हैं, लेफ्ट में स्वाधा। एक शुक्ल पक्ष है, स्वाहा शुक्ल पक्ष है, स्वाधा कृष्ण पक्ष है। देवता का स्वाहा है और पितृपक्ष का स्वाधा है। पितृ कार्य में स्वाधा देवता है। यही है ना मैडम? हाँ यही है। स्वाहा देवताओं को वो आहार देते हैं और स्वधा पितृ देवताओं को देते हैं। बस मैडम, फिर मुझे ये देखना पड़ेगा। दोनों अग्नि का पत्नी है, मतलब स्वाहा स्वधा वो अग्नि के पास होते हैं। वो माँ ही उसके पास वो स्वाहा स्वधा शक्ति रूप में अग्नि के साथ होते हैं। तो दोनों ही अग्नि की पत्नी है। हाँ अग्नि का पत्नी है स्वाहा स्वधा। इधर तक है। और वो मंत्र पे होते हैं, बीजाक्षर से हम मंत्र करते हैं ना, कुछ मंत्र स्वाहा के साथ होते हैं, मगर वो ही स्वाहा के अलावा वो नमः भी हम बोलते हैं। मतलब वो ओम सरस्वती नमः ऐसा नमः बोलते। नमः मतलब वंदन करना। ओम रामाय नमः ऐसा। वो तब क्या होते हैं, वो बीजाक्षर मिला के वो करते, तो वो पहले बीजाक्षर मिला के फिर नमः बोलते हैं। कुछ मंत्र में होते हैं वो स्वाहा मिला के होते हैं। स्वाहा मिला के पुरुष ही कर सकते हैं, मगर स्त्री नहीं करना है, पुरुष कर सकते हैं।
वो स्वाहा के साथ, मतलब वो स्त्री नहीं करना है। ऐसा मंत्र लेते तो गुरु से ही लेना है, बीजाक्षर से, लेकिन हम खुद नहीं करना है। क्योंकि वो मंत्र से कुछ हो जाते तो वो गुरु का ही बाध्यता होते हैं, इसलिए वो गुरु देखते हैं। नहीं तो वो हम खुद ही करते तो क्या होता है, वो मंत्र से कुछ प्रॉब्लम आते तो भी हम नहीं सॉल्व कर पाते हैं, इसलिए वो गुरुमुखता से ही मंत्र लेना है। तो ये वो सोहा जो हम पाठ करते हैं मैडम, क्या ये जो माता के नाम में स्वाहा है, ये तो हम लोग पाठ करते हैं। हम लोग कर सकते हैं ऐसा वो पूछ रहे हैं आप? यहाँ तो हम डेली पाठ करते हैं ना, डेली माता के नाम में जो स्वाहा है। उसको समझ में नहीं आ गया। ये जो तस्वीर In the Nama you can chant, but otherwise on doing a homa or यज्ञ में जो offer करके ऐसे बोलते हैं ना, so that madam says that kind of an offering ladies are not permitted or ladies should not do. But doing this Nama chanting, that we हाँ, can do. और एक बात है, हम संकल्प में ओम केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा ऐसा बोलते हैं ना संकल्प में, वो भी स्त्री नहीं करना है। तब क्या करना है, ओम केशवाय नमः नारायणाय, स्त्री करे तो ऐसा करना है। मगर पुरुष करते तो केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा ऐसा करते। मगर वो स्त्री आचमन लेते समय में भी केशवाय नमः नारायणाय नमः ऐसा करना है, वो अच्छा मैम, ऐसा स्वाहा से नहीं करना है। मैम तो स्वाहा क्यों नहीं करना चाहिए ऐसा? वो स्वाहा करे तो लेडीज को वो यूट्रस होते हैं ना, इसके वजह से गर्भ होते हैं। वो स्वाहा करे तो क्या होता है, वो उसका अंदर का वो पैदा होने वाले वो तत्व होते हैं ना, वो भी स्वाहा हो जाते हैं। स्वाहा मतलब इधर दो मीनिंग है, वो स्वाहा मतलब समर्पण करना है। वो क्या होता है, स्वाहा करके हम अंदर लेते हैं ना, वो हमारा गर्भ होते हैं, उसका अंदर वो शक्ति होते हैं, वो स्वाहा हो जाते हैं, मतलब वो समर्पण, वो देवता को समर्पण हो जाते हैं। इसलिए वो स्वाहा लेडीज नहीं करना है, इसका प्रॉब्लम्स आते हैं। वो स्वाहा करे सो वो गर्भ का वो प्रॉब्लम्स आते हैं, इसलिए वो नहीं करना है। उसका अंदर वो अंड होते हैं, eggs होते हैं, वो समर्पण होते हैं। ओम भी तो इसलिए नहीं करना है ना मैडम, आ, ओम की उच्चारण नहीं करना है। ओम भी उच्चारण नहीं करने बोलते, मगर ओम हम इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्टली, इसलिए ओम नमः शिवाय वो षडाक्षरी होते हैं, इसलिए स्त्री लोग करना है नमः शिवाय ऐसा करते हैं। मगर कुछ एक बार ओंकार होते हैं, इनडायरेक्टली मिला के कर सकते हैं, मगर डायरेक्टली ओम नहीं करना है। मगर कुछ नाम से इनडायरेक्टली हम कर सकते हैं, मतलब वो ऐसा डायरेक्टली वो नहीं करना है। वो ओंकार करते हैं ना ऐसा। ओम क्यों नहीं करना चाहिए लेडीज को, इसके पीछे क्या रीजन है? इसमें क्यों नहीं करना चाहिए वही है, लेडीज को वो गर्भ होते हैं, वो गर्भ वो यूटरस होते हैं, वो यूटरस पे प्रभाव पड़ते हैं, क्योंकि वो इतना शक्तिवंत है, वो शक्ति को वो नहीं सहन पाते, मतलब वो यूटरस में वो पूरा यूटरस में हो जाते हैं। इसलिए ऋतु संबंध का मतलब वो व्याधि आते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। मगर पुरुष लोगों को वो यूटरस नहीं होते हैं ना, वो कर सकते हैं। मगर ये यूटरस स्त्री लोगों को होते हैं, वो यूटरस ज्यादा सेंसिटिव पार्ट है, इसलिए हम वो इतना, इसलिए ओमकार हम डायरेक्टली नहीं करना है। कुछ नाम से हम मिला के करते हैं, मगर ओंकार ज्यादा इतना हम वो ऐसा करके वो नहीं, इतना ज्यादा नहीं करना है। एक बार हमारा प्रार्थना पे वो आते हैं, मगर हम इतना नहीं कर रहे हैं ना, वो ऐसा मगर हम ऐसा करके, इसलिए हम कर सकते हैं
वो वो आ वो माँ हम कर सकते हैं। आ वो अच्छा माँ वो हो जाते हैं, मगर डायरेक्टली वो नहीं करना है। अच्छा अच्छा हाँ। ओंकार हम श्रीम ऐम ऐसा ये कर सकते हैं। ये ये जो सदगुरु है मैम, वो डायरेक्टली ओम नहीं बताते हैं, उनके उनका जो है इस तरह से वो। हाँ, ऐसा ही करना है। आकार मतलब ये साधना मैं कल पूरा मैं साधना करवाऊं। हाकिनी मुद्रा से लेके आवू माँ से, मतलब आकार होते हैं। नाभि के नीचे पार्ट के लिए आकार होते हैं, और नाभि से लेके अनाहत तक होते हैं। उकार होते हैं, और कंठ से लेके सहस्रार तक होते हैं मकार, मतलब वो बिंदु रूप है। ऐसा आते हैं, वो आते हैं। तब ऐसा हम साधना करते तो हम ये करते हैं ना, विभाग प्राणायाम, कनिष्ठ विभाग, मध्यम विभाग, ज्येष्ठ विभाग। उसमें आते हैं कनिष्ठ विभाग आकार में, और मध्यम विभाग में आते हैं उकार, और वो शोल्डर से लेके सिर तक, कंठ से लेके सिर तक होते हैं वो मकार, वो बिंदु रूप में आते हैं। ऐसा 3 पार्ट्स करके ये ऐसा भी कर सकते हैं। ये एक साधना है। ऐसा हम सोहम में ऐसा कर सकते हैं। सोहम में आकार उकार मकार मिला के हम कर सकते हैं, मगर डायरेक्टली ओंकार ऐसा हम ये नहीं करना है, स्त्री लोग नहीं करना है। मगर पुरुष लोग भी आकार उकार मकार से कर सकते हैं। क्या तब क्या होते हैं, आकार से पूरे नीचे पार्ट, कनिष्ठ विभाग में हम बोलते हैं ना, कनिष्ठ पार्ट पे उसका असर पड़ते हैं, नाभि के नीचे से पांव तक। और होते हैं मध्यमा के लिए उकार, वो नाभि से लेके अनाहत मतलब हार्ट तक होते हैं, वो चेस्ट तक। उसके बाद होते हैं मकार, कंठ से लेके सिर तक होते हैं। ऐसा साधना साधना में, इसलिए मैं बोलते हैं सभी मेरे साथ होते तो, मतलब डेली आके मेरे साथ प्रयाण करते तो क्या होता है, मैं कुछ कुछ मैं सिखा सकती हूँ। मगर डेली ऐसा नहीं आते तो क्या होता है, इतना होते हैं उतना होते हैं, मगर मेरे साथ प्रयाण करते तो है ना, ये साधना में मैं कुछ सिखा सकती हूँ। तो टाइमिंग मैम कौन सा रखेंगे, मॉर्निंग वाला या फिर? हाँ, हम करेंगे। एक एक ये भी ऐसा कर सकते हैं। हम डेली ये ललिता सहस्त्रनाम कर रहे हैं ना, वो 7 दिन में 2 दिन ऐसा बीच में ये साधना करने के लिए हम रख सकते हैं। हाँ हाँ वो ठीक है। पूरा हम क्या क्या सीखा है, वो साधना करने से ही वो प्रैक्टिकल में हमको वो फल मिलते हैं, है ना। अच्छा। योगा हम सीख रहे हैं, वो प्राणायाम और ये ललिता सहस्त्रनाम अलग नहीं है। मगर ये पूरा ललिता सहस्त्रनाम एडवांस्ड लेवल है। मगर अभी हम इसका मीनिंग हम समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मगर इसको प्रैक्टिकल में भी हम करना पड़ेगा, है ना। वो हमको होता है वो समझने में, वो मीनिंग वो समझने, वो टाइम पे हमको लगते हैं वो समझ में आ गया। मगर हम प्रैक्टिकली हम थोड़ा सा ये करते तो, साधना करते तो वो और ज्यादा अच्छा रहेगा। ज्यादा तक बोलते हैं वो ये वो स्त्री क्यों नहीं करना है, वो पीरियड्स टाइम में क्यों टेम्पल पे नहीं जाना है, सभी के लिए रीजन है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। डेली थोड़ा हम इसके बारे में डिस्कस करते तो अच्छा है, क्योंकि हम फ्यूचर जनरेशन्स को भी बता सकते हैं ना, ये क्यों नहीं करना है।
साइंटिफिकली होते हैं, उसके लिए रीजंस भी होते हैं। स्त्रियों को वो यूटरस वो वो अलग सा, पुरुषों से अलग सा यूटरस होते हैं, वो यूटरस ज्यादा सेंसिटिव पाते हैं, इसलिए हम कुछ चीज नहीं करना चाहिए इसके लिए। नहीं तो क्या होते हैं, वो ऋतु संबंध व्याधि आते हैं, कुछ वैसा प्रॉब्लम्स आते हैं, मेंस्ट्रुअल का प्रॉब्लम्स आते हैं। अभी आप देख लीजिए, इनफेर्टिलिटी इतना बढ़ गया है, पहले से भी जाते तो कुछ वो फर्टिलिटी हॉस्पिटल्स जाते तो इतना वो इनफर्टिलिटी पेशेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि वो मेंस्ट्रुअल का वो पीरियड्स टाइम में कुछ चीज करना है, वो नहीं कर रहे, उसके उसके वजह से ही प्रॉब्लम्स आते हैं। और ज्यादा तक उसके वजह से ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, वो टाइम में हम कुछ करना चाहिए। उसके बारे में भी हम डिस्कस करना है, क्योंकि ये मंत्र करने, हम कुछ मंत्र करते हैं, ये करते हैं, तभी उस पे थोड़ा सा असर पड़ते हैं, मगर इसलिए हम थोड़ा सा वो लेडीज ने कुछ पीरियड्स टाइम में कुछ चीज नहीं करना है, कुछ चीज करना है, क्यों वो उसके बारे में हम मालूम करना चाहिए। और एक बार हम जतिन जी को बुलाते हैं, वो जतिन जी भी वो ऋतु समस्या के लिए और वो ऋतु विज्ञान वो अच्छे से देते हैं। वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है ना। एक बार हम वो क्लास रखेंगे उसके साथ, वो अच्छे से बताते हैं हमको क्या नहीं करना है, क्या करना है ये टाइम पे। ज्यादा लोग अभी समझते हैं वो ये जमाने पे वो सभी छोड़ रहे हैं, मगर हम कुछ छोड़ सकते हैं। कुछ होते हैं, कुछ आचार कैसे होते हैं, मूर्ख जैसे होते हैं, मगर कुछ आचार साइंटिफिकली वो निरूपित है। ऐसा आचार को हम वो ऐसा वो उसको हम पकड़ के हम कर सकते हैं। अ, शांति मंत्र है। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। हरि ओम् श्रीमात्रे नमः। हरि ओम श्रीमात्रे नमः। हरिओम श्री मात्रे नमः। अभी ये समझ में आ गया ना? हाँ जी मैम। इसके बारे में भी और आप सुन सकते हैं, यूट्यूब में आपको मिलते हैं सिनू जोसेफ नाम का वीडियोस उसके, वो हाँ मैम, क्रिश्चियन आपने है, एक दो मगर फॉरवर्ड किए हैं। हाँ जी। हाँ, वो इसके बारे में इतना अच्छे से वो बताया है, मैं भी सुनना है उसके, वो बुक्स भी लिखाया है, वर्ण व्यवस्था, ऋतु व्यवस्था, वो ऐसा कुछ बुक्स भी लिखा है। वो पूरा वो सनातन धर्म में क्या क्या है वो रिसर्च करके वो पूरा वो साइंटिफिकली वो बताया है। वो सभी इसके बारे में मालूम करना चाहिए, क्योंकि उस नेक्स्ट जनरेशन को वो बताना है, क्योंकि वो साइंटिफिकली वो बताया है।
वो विज्ञान ये, क्योंकि टेम्पल्स क्यों नहीं जाना है, वो पीरियड्स टाइम में पूजा क्यों नहीं करना है, ये सभी मालूम कर दे तो अच्छा है ना। हाँ जी मैम। हमारा वो ऐसा एक एक टेम्पल एक एक चक्र के लिए होते हैं। हमारा काशी है वो पूरा सहस्रार के लिए अच्छे है। ऐसा एक एक टेम्पल एक एक चक्र के लिए होते हैं। कंची होते हैं, कंची। आप एकांबरेश्वर वो पृथ्वी लिंग है, वो मूलाधार चक्र के लिए अच्छे है। अरुणाचलम होते हैं वो मणिपूरक का स्थान है, वो अग्नि का अग्निलिंग होते हैं, वो अग्नि के लिए वो पंचभूत में वो अग्नि का स्थान है, वो मूलाधार मणिपुर चक्र के लिए वो है। ऐसा एक एक होते हैं, एक 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 क्षेत्र एक एक चक्र के लिए होते हैं। उधर ये चक्र एक्टिवेट होते हैं। ये भी हम अ, ढूंढते तो हमको मिलते हैं, कौन सा टेम्पल पे कौन सा ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ये हम मालूम करना है। काशी होते तो पूरा सहस्रार के लिए अच्छे है, वो सेंटर पॉइंट है। ये क्लासेस में वो भी हम थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और साधना भी 2 दिन साधना भी हम करेंगे। अच्छा, ओम श्री मात्रे नमः। अर्चना जी आपको भी सोने का टाइम ज्यादा हो गया कोई होगा। बात नहीं मैम। मैडम।